If you have to describe Java in one word, robust, secure, okay. and reliable. So how you prepare yourself for the interviews? मैंने अपनी स्ट्रेटजी को फेजेस में डिवाइड कर लिया था. तो अभी आयुष, अभी हम बात कर रहे थे, आपने डीएसए के बारे में तो बता दिया, बट व्हेन इट कम्स टू जावा तो काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम जावा कहाँ से पढ़ें, कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करें. सो आयुष, यू गॉट प्लेसमेंट इन बोश एज अ कैंपस प्लेसमेंट इट वाज. सो उस टाइम पे भी आपके जावा डेवलपर ही हायरिंग हुई थी या इट वाज जस्ट अ जनरल बेस्ड हायरिंग? हाँ, तो जब हायरिंग हुई थी तब तो जनरल बेस्ड ही हायरिंग हुई थी, पर Hi everyone, so welcome back to my YouTube channel. So in this video, I have invited Ayush Dutt, who is currently working as a Java developer with Randstad company. So in this video, we would be knowing from Ayush Dutt regarding his Java development journey, like how he started and how he entered into this Java development. So in this video, I'll be inviting Ayush Dutt. So Ayush, before starting this video, I would love you to introduce yourself. लाइक आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, एंड कैसे आपने जावा लैंग्वेज स्टार्ट की एंड यू डेवलप्ड योर करियर इन इट. yeah, so hi Kajal, thanks for inviting me to your channel. So basically, if I talk about my journey, so basically I am from Lucknow, UP, and I have done my schooling from here itself from Lucknow Public College, which is affiliated to ICSE board. And then I have done my bachelor's in engineering, Bachelor of Technology in Computer Science background from APJ Abdul Kalam Technical University from a college in Noida. And then from college itself I got a campus placement in Bosch Global Software Technologies, which is situated in Bangalore. So I started my, you can say, my job for there, and I have done 6 months of internship also in that same company first, and then entered into full-time role as a software engineer in the Java development profile. So so pretty much that's how my Java development journey started. And so yeah, I worked there almost you can say 3.5 years in the company, and after that I switched from Bosch to my current company, which is Randstad Digital, as a senior software engineer, and yeah, continuing my journey as a Java developer now. So yeah, this is basically my Yeah. short intro, I would like to say. Yeah. So Ayush, as you have mentioned, you got campus placement. So from your college, have you been preparing for Java language, or it's just during the placement you have decided, or in the company you got into this Java? Okay, so my Java development journey started long back from school itself, I would say, because in the ICSE background उसमें होता क्या है कि उसमें कुछ subjects जैसे compulsory होते हैं. So English being one of the compulsory subject, and then we have to choose one optional subject, and mostly in ICSE board they are preferred the computer applications subject. सो या सो जब हमने वो चूज़ करी थी तो उसमें हम लोगों को एज अ कोडिंग लैंग्वेज जावा ही पढ़ाते थे उसमें. तो मेरी जर्नी एज ए जावा वहीं से शुरू हो गई थी. तो मुझे तभी से जावा लैंग्वेज समझ में आने लगी थी, या फिर कह लीजिए मैं वहीं पे पढ़ने लगा था. उसके बाद फिर जब कॉलेज गए, सो कॉलेज में जाने के बाद इनिशियल ईयर्स में क्या होता है कि कम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह बहुत आने लगता है, क्योंकि वी नीड टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिशन्स एंड हैकेथॉन्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो उसमें क्या होता है कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में C++ ज़्यादा प्रेफर की जाती है. सो ड्यूरिंग दैट इनिशियल यू कैन से फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज आई ट्राइड C++ ऑल्सो, बट आफ्टर दैट जब इंटरेस्ट की बात आती है, मेरा इंटरेस्ट जो है कंसेप्चुअल नॉलेज, क्योंकि मेरा जावा में था, तो मैंने वापस से फिर जावा में स्विच किया, और उसी में फिर मैंने जो भी प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशंस थी वापस मैंने जावा में ही करी फॉर्म डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एंड ऑल, एंड देन हैव माय कैंपस प्लेसमेंट. सो ये रहा मेरा एक्चुअली.
अगर मेरा बैकग्राउंड पूछोगे। यस आयुष, एज यू मेंशन कि क्लास 12th से आपने ऑलरेडी आप जावा से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर थे, बट जो फुल फ्लेश प्रिपरेशन थी वो आपने स्टार्ट की कॉलेज ड्यूरेशन से। तो कॉलेज में बताइए कि जो मेन चैलेंज होता है दैट इज़ द डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम, आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे की? सो बेसिकली उस समय तो ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं अवेलेबल होते थे। उस समय कुछ मेजर पॉपुलर रिसोर्सेज जैसे गीक्स फॉर गीक्स होता था, और यू कैन से कुछ चैनल्स थे जैसे दुर्गा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, मुझे याद है उनके चैनल्स काफ़ी पॉपुलर थे, पर उनके काफ़ी लेंदी लेक्चर्स होते थे। तो लेकिन वैसे ही हम लोगों ने प्रिपरेशन करी, और या तो वैसे ही समझा। later on during the you can say my last years of college, बहुत सारे रिसोर्सेज फिर अवेलेबल होने लगे, तब कोचिंग्स भी पॉपुलर हो गई थी काफ़ी, और वो लोग भी यूट्यूब में काफ़ी डालने लगे थे। तो उस वजह से फिर बाद में रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हो पाए। तो वैसे फिर यू कैन से प्रिपरेशन कंटिन्यू करी। बट या इनिशियली तो जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे जैसे गिग फॉर गिग, वैसे ही प्रिपरेशन करी थी। या Okay. So basically, since you have started preparing with Java only, तो what motivated you कि मुझे अब Java में कंटिन्यू करना है? I know 12th क्लास में आपने Java प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फेमिलियर थे, तो मतलब आपको क्या लगा कि Java का फ्यूचर स्कोप अच्छा रहने वाला है या आई शुड हैव टू कंटिन्यू, और एक फेमिलियरिटी थी इसकी वजह से आपने Java के साथ ही कंटिन्यू किया? हाँ, दोनों रीजंस मैं बोलूँगा कि एक तो फैमिलियरिटी बीइंग वन ऑफ द मेन रीजंस, और दूसरी बात ये है कि जब जावा के आप कंसेप्ट एक बार समझ जाते हो तो उसको फिर ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना आसान हो जाता है। फिर आप जब किसी और लैंग्वेज में आप स्विच करते हो, सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई से ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ कॉलेज फॉर प्रोजेक्ट पर्पस मैंने पाइथन भी सीखी, और मैंने कॉलेज प्रोजेक्ट पाइथन में भी किया। लेकिन पाइथन में क्या है कि ऑल दो जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड है और करना आसान है, पर आप जब एज ए यू कैन से जब यू नो स्ट्रक्चर्ड वे में सीखने की बात आती है एज ए कॉन्सेप्ट, तो फिर वो आप ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हो इन दी लॉन्ग रन। तो इसी वजह से मुझे जावा में एज फेमिलियरिटी थी, और उसका जो यू नो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पसंद आता था, जैसे ऊप्स हो गया या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो उसका था, तो वही मुझे पसंद आया जावा में। क्योंकि सी प्लस प्लस पे भी जब मैंने सीखा था उसमें पॉइंटर्स का खेल था, तो पॉइंटर्स वॉज देन अगेन कंफ्यूजिंग विथ माई ऑब्जेक्ट्स कॉन्सेप्ट इन जावा। सो देन आई वेंट बैक टू जावा अगेन एंड या कंटिन्यूड विद दैट। सो इसी वजह से मैंने जावा कंटिन्यू। यस। तो अभी आयुष, अभी हम बात कर रहे थे, आपने डीएसए के बारे में तो बता दिया, बट व्हेन इट कम्स टू जावा तो काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम जावा कहाँ से पढ़ें, कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करें, और हम फर्स्ट ईयर में हैं कॉलेज में, तो क्या हमें फ्रेमवर्क्स भी पढ़ने चाहिए? तो आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपने कैसे जावा की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? अच्छा, तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले तो जो नॉर्मल रिसोर्सेस हैं आप उसी से जावा पढ़ने की कोशिश करें, जैसे कि गीक्स फॉर गीक्स हो गया, या फिर अब तो बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी अवेलेबल है, कोडिंग निंजास एंड ऑल, उनके कोर्सेस अवेलेबल है, आप ट्राई आउट कर सकते हो। अगर आप बजट फ्रेंडली लेना चाहते हो देन यू कैन चेक आउट यूडेमी कोर्सेस एज वेल, and if you want to go then YouTube is also a great resource to study, I would say, and both हिंदी एंड इंग्लिश में आपको plenty of channels मिल जाएंगे जिससे आप स्टडी कर सकते हो। सो फॉर इनिशियल ईयर्स ऑफ कॉलेज आई वुड सजेस्ट जस्ट स्टिक टू जावा concepts first and don't focus on framework and development. Just you can say prepare the Java core concept first, and then you can slowly move on to the Java advanced concept, and then if you are pretty much have a good strong foundational base on those concept, then you can hop on to the frameworks like Spring and Kotlin, like आप ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये मेरा सजेशन रहेगा इनिशियल ईयर्स ऑफ कॉलेज। सो अगर एज पर एज रिसोर्सेज इफ़ आई वांट टू लिस्ट सम, अगर आप हिंदी में सीखना चाहते हो देन लर्न कोड विद दुर्गेश इज़ ए गुड चैनल, एंड
English में then we have channels like Java Guides and Telusco in YouTube, and then in Udemy we have in 28 minutes channel, and you can check out that course in Udemy. So these are some starting resources where you can start your journey in Java. Yes. So Ayush, you got placement in Bosch as a campus placement. It was. So उस टाइम पे भी आपके जावा डेवलपर ही हायरिंग हुई थी या इट वाज जस्ट अ जनरल बेस्ड हायरिंग? हाँ, तो जब हायरिंग हुई थी तब तो जनरल बेस्ड ही हायरिंग हुई थी, पर मैंने ड्यूरिंग द कैंपस प्लेसमेंट पूछा था कि आप लोग मेजरली किस फ्रेमवर्क्स पे काम करते हो, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं। तो उनने बेसिकली, क्योंकि बॉश इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो उनके बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस थे। तो हार्डवेयर सॉल्यूशंस जो थे वो तो मतलब टिपिकल जो लैंग्वेजेस होते हैं एम्बेडेड सी वगैरह, वो लोग उसमें कर रहे थे। और क्योंकि मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हायर हुआ था, तो हम लोगों के लिए जो ऑप्शंस थे वो डॉट नेट था और जावा था। और जब मुझे प्रोफाइल जब मैं ज्वाइन किया था तो मुझे डॉट नेट ही मिला था। अब डॉट नेट नया सीख था, उससे बेहतर क्योंकि इंटर्नशिप भी चल रही थी, तो मैंने I just reached out to my manager and asked if there is a Java project available, and then he made me switch to Java software project, and yeah, तो वहाँ से फिर मैंने जावा ही कंटिन्यू करी। तो ये था बेसिकली। लेकिन डॉट नेट भी बहुत सिमिलर है जावा के, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, थोड़ा बहुत सिंटेक्स का फ़र्क है, लेकिन या तो पर है वो ऑलमोस्ट, इफ यू विल फाइंड मैनी सिमिलरिटीज विद जावा। ओके, तो आप अपना बॉश का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, लाइक जो भी फ्रेशर्स है, ताकि वो भी अगर उनके कॉलेज में भी बॉश जैसी कंपनी आती है, सो हाउ दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स? Yeah, so as a interview experience for Bosch in campus, you will say, I will say like pretty much very generic, like आप पहले तो कोर और एग्ज़ाम एडवांस कंसेप्ट जो होते हैं वही आप प्रिपेयर करो, क्योंकि जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ उनके इंटरव्यू में उन लोगों ने जावा कॉन्सेप्ट तो पूछे ही थे, in which the interviewer made me to write a simple code in Java, like a swiping program or a prime number program like that during the initial rounds. और उसके अलावा उन लोगों ने जो कोर इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो सब्जेक्ट है उसमें पूछा उन लोगों ने, फिर डेटाबेसेस में पूछा, तो वो सब भी उन लोगों ने पूछा। और तो आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि वो मिक्स एंड मैच ही पूछेंगे। हाँ, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेमवर्क्स एंड ऑल वो उस पर फोकस नहीं करते हैं, वो मेन कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करते हैं। तो आप ऊप्स और जो भी मेन कंसेप्ट हैं, ऊप्स हो गया, और या फिर एडवांस जो कंसेप्ट हैं जावा 8 फीचर्स, आप बस वही प्रिपेयर कर सकते हैं। So Ayush, since your first campus placement was in Bosch, so how was your experience with the company, and what was your profile, and what was your overall experience with the company? Like अगर कोई Bosch company का offer उनको आता है, so what you can suggest to them? Is it a good company to join? Yeah, definitely it's a good company to join, and basically it's a company where you can find a work life balance, I would say, and तो उनका मतलब वर्क कल्चर तो बहुत ही अच्छा है, एंड एज अ वर्क कल्चर आप काम करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है बॉस। ओनली द थिंग वन कॉन्स आई वुड से, लाइक थोड़ा पे पैकेज उनका कम है इनिशियल ईयर्स एज अ फ्रेशर, आई वुड से। If you want to a good package, then you can try for the tier 1 and tier 2 product based companies, then I would say, yeah. But as a work culture and all, and regarding projects, Bosch is a good company to join. Okay, so what was your initial package, if you have no problem in sharing? Initial package was starting 5 lakhs only, and yeah, and based on my performance I have got a pretty much decent hike also. So I in the 3 years of journey I moved from 5 to almost you can say double, around 9 lakhs. So this was my, you can say, based on performance. After that, due to
the market was down. So yeah, so then they were reluctant to give more hikes and all, and that's why I decided to switch now for my development also. Yeah. जब आपने बॉश कंपनी जॉइन की थी, तब आपको कंपनी ने कोई ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की थी या यू वर डायरेक्टली मैप्ड इनटू सम प्रोजेक्ट? Not as such training, but in the internship phase, they gave me a project which we need to develop, and we can take help of the training resources within Bosch itself and outside also if possible. So the training was by ourselves only mostly, although there were some in-house training webinars available which you can take and join, but as such full-fledged training as such कुछ भी नहीं था. We carried on with ourselves. So yes, so then after some years like 3.5 something years that you have decided कि अब मुझे switch लेना है, तो अब उसके बारे में बताइए कि कैसे आपने अपनी strategy plan out की, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आ जाता है. आपने इंटरव्यू दिया 3.5 years बैक एंड नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज अगेन एंड एक लिंक सा भी छूट जाता है. सो हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इंटरव्यूज? या सो बेसिकली यू कैन से मैंने अपनी स्ट्रेटजी को फेजेस में डिवाइड कर लिया था. तो पहले तो मैंने लैडर वाइज प्रिपरेशन करी कि मुझे कौन सी कंपनीज टारगेट करनी है और किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है. सो बेसिकली मैं टीयर 3 प्रोडक्ट बेस में था, तो मुझे पता था या तो मैं टीयर 2 प्रोडक्ट बेस लाइक टारगेट करूं और या फिर टीयर 1 पे भी एक बार ट्राई मारूं और जो सर्विस बेस अवेलेबल हैं उसमें भी ट्राई मारूं. सो बेसिकली इन द इनिशियल मंथ्स I just prepare the basic concepts like core and advanced, and then the frameworks and all. So with that preparation, I targeted first the you can say tier 3 product based companies and the service based companies. तो उस पर मैंने कुछ ट्राई किए जिसमें सर्विस बेस में जो भी आते हैं TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट वगैरह ये सभी मैंने दिए. और फाइनली मुझे इन्फोसिस से ऑफ़र आ गया था. सो उसके बाद ही फिर मैंने पेपर ड्रॉप किया और स्विच करने का डिसाइड किया. एक बार जब एक ऑफ़र मेरा सिक्योर हो गया था, फिर मैंने वहाँ से जो नोटिस पीरियड था मेरा, मैंने वहाँ पे अपनी प्रिपरेशन यू कैन से डबल कर दी और जो टीयर 2 पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उस पर फिर टारगेट किया. और जिसमें फिर मैंने सीमेंस भी क्रैक किया, ईपैम क्रैक करी थी, और एक IBM की थी सब्सिडरी न्यूडेसिक, वो मैंने क्रैक करी थी. और जो मेरी प्रेजेंट कंपनी है रैंडस्टेड डिजिटल, वो मैंने ऑफ़र सिक्योर किए. और जो टीयर 1 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है मैंने वहाँ पे भी ट्राई किया. वहाँ पे कुछ राउंड्स हुए बट आई फेस रिजेक्शन इन दी लेटर राउंड्स. सो एंड बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा नोटिस पीरियड भी एंड ऑफ यू कैन से एंड होने को आ रहा था. तो इसी वजह से मैंने यू कैन से स्टॉप माई प्रिपरेशन ईयर, एंड अदरवाइज आई कुड हैव इन्वेस्टेड मोर टाइम एंड या टारगेटेड दोज कंपनीज एज वेल. ओके, सो आयुष आपका बॉश में नोटिस पीरियड कितने मंथ्स का था? हाँ, तो नोटिस पीरियड मेरा 90 डेज़ का था. सो 3 मंथ्स का फुल नोटिस पीरियड था. तो इस वजह से मुझे इस तरह की स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजी अपनानी पड़ी कि मैं कैसे टाइम को मैनेज करूं. और या तो ये रहा. तो 90 डेज की नोटिस पीरियड में आई रिमेंबर जब मैं इन्फोसिस में थी, इट इज़ ऑल्सो हैविंग 90 डेज नोटिस पीरियड. तो 90 डेज की नोटिस पीरियड पे कोई भी HR का जो कॉल आना होता है वो प्रॉबेबली कोई भी कैंडिडेट ये सोचता है कि बहुत ही लेसर नंबर ऑफ चांसेस है. तो आप बताइए कि आपने क्या स्ट्रैटेजी अलाइन की कि हाँ कि मुझे कॉल आ जाए? हाँ, तो बेसिकली जब मैं जॉब हंट कर रहा था मुझे भी कॉल नहीं आ रहे थे. पर मैं जो मैंने बताया कि जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी कि पहले मैं सर्विस बेस और टीयर 3 प्रोडक्ट बेस टारगेट करूं, और वो मैंने यही सोच के करी थी क्योंकि मेरा नोटिस पीरियड 90 डेज़ है. तो यही सर्विस बेस्ड कंपनीज ये 90 डेज नोटिस पीरियड एक्सेप्ट कर सकती हैं. तो इसीलिए पहले मैंने यहाँ ट्राई किया, और जब ऑफ़र सिक्योर हो गया उसके बाद मैंने पेपर ड्रॉप किया. और फिर मैं एक हैक बताना चाहूँगा कि जब आप एज अ 90 डेज पीरियड आपका शुरू हो जाए
तो आप एज ए नौकरी वेबसाइट को एज ए यूज़ कर सकते हो बहुत इफ़ेक्टिवली, और उसमें आप ये मेंशन कर दीजिए कि आप सर्विंग नोटिस पीरियड हो। तो जब आप सर्विस नोटिस पीरियड हो जाएंगे तो जो भी रिक्रूटर्स है आपकी प्रोफाइल ज़्यादा विजिबल होने लगेंगी, और फिर आपको कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप वहाँ पे मत नोटिस करो, मतलब मेंशन मत करो नौकरी प्रोफाइल में कि आपकी 90 डेज नोटिस पीरियड है। बस आप ये मेंशन करो कि आप सर्विंग नोटिस पीरियड हो। जब उनका कॉल है तो आप उसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं कि मेरा 60 डेज नोटिस पीरियड है और ये मैनेज हो जाएगा, इट इज़ नेगोशिएबल एंड ऑल। एंड इस तरह आप कॉल्स को कन्वर्ट कीजिए इंटरव्यू में, एंड देन यू कैन buy the time in the interview process to other companies like that. Okay. So, any resume tips for Java developers to get noticed by recruiters? uh, resume tips I would say बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगा, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है कि जो भी आपका रेज्यूमे है वो 1 पेज या 2 पेज रेज्यूमे ही रखिए, बहुत लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत शॉर्ट कंसाइज ही रखें और टू दी पॉइंट रखें। और कोशिश करिए कि उसमें आप कीवर्ड्स ज़्यादा यूज़ करें, जो भी आपके स्किल्स हैं या जो भी आपके प्रोजेक्ट में काम हुआ है जिस भी टेक्नोलॉजी पे, उन कीवर्ड्स का ज़्यादा यूज़ करें अपने रेज्यूमे में, उनको हाईलाइट करें। क्योंकि इन करियर वेबसाइट्स में होता क्या है कि दे यूज़ सॉफ्टवेयर टू स्कैन द रेज्यूमेज, एंड दे पिक दोज रेज्यूमेज ओनली इन विच द कीवर्ड्स गेट पिक्ड अप बाय दिस सॉफ्टवेयर, एंड जो जिनकी मैचिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है जिन रेज्यूमेज की, देन वही रेज्यूमे फिर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं एंड देन कॉल करते हैं। तो यही मेरा मतलब रहेगा कि ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है रेज्यूमे, पैराग्राफ या सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट हैंड सेंटेंसेस एंड कीवर्ड्स में आप अपना रेज्यूमे कंप्लीट कर। So, since Ayush, you have already been interviewed in many of the company as a Java developer. So, according to based on your experience, so what type of questions have been asked to you? So, like किस पे फोकस ज़्यादा रहता था? HLD के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, LLD के पूछे जाते थे, DSC का क्या कॉन्सेप्ट रहते थे, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, और जावा के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप रिकॉल कर सकते हैं, बिकॉज आपका ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके, सो मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड करूँगा कि एक तो जो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ और Tier 3 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ का पैटर्न होता है इंटरव्यू पैटर्न, और दूसरा जो Tier 2 प्रोडक्ट बेस्ड और Tier 1 प्रोडक्ट बेस्ड होता है। तो होता क्या है कि जो सर्विस बेस्ड और Tier 3 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ होती हैं, इसमें ये लोग एक ही तरह के पैटर्न यूज़ करते हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया। तो बेसिकली दे विल स्टार्ट फ्रॉम द कोर कंसेप्ट, जावा कोर कंसेप्ट, इन विच जिसमें आपसे ऊप्स का कॉन्सेप्ट पूछेंगे, एंड देन जावा के फीचर्स पूछेंगे, एंड देन दे विल मूव ऑन टू द एडवांस कंसेप्ट्स लाइक ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल, एंड उसमें आपसे पूछेंगे। देन दे विल मूव ऑन टू द फ्रेमवर्क कंसेप्ट। सो जो भी आपने फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया है, स्प्रिंग बीइंग मोस्ट पॉपुलर, तो वो आपसे वो पूछेंगे। तो आप उसमें अपना प्रिपरेशन करिए पहले। उसके बाद जब आप उनको फाउंडेशनल स्ट्रॉन्ग हो जाए, देन यू कैन मूव ऑन टू द डेटाबेस क्वेश्चंस, और जो लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स से जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि लिंक लिस्ट हो गए, स्टैक्स क्यूज। हाँ, सो जैसे कि मैंने बोला कि आप फेज़ 1 प्रिपरेशन यहाँ पे एंड कर सकते हो, जहाँ पे आप अपना कोर कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट एंड देन दी फ्रेमवर्क कॉन्सेप्ट, उसको आप प्रिपेयर करें फॉर टारगेटिंग दिस कंपनीज। देन फॉर Tier 2 एंड Tier 1 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज यू कैन लेवल अप योर प्रिपरेशन। उस पर आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, जो भी प्रोग्रामेटिक क्वेश्चंस हैं, और उसमें भी यू कैन डिवाइड योर प्रिपरेशन इन द इजी एंड मीडियम क्वेश्चन एंड देन मूव ऑन टू द हार्ड क्वेश्चंस। सो आप ऐसे प्रिपरेशंस कर सकते हैं, एंड बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस also they will ask the questions. So like the questions related to HLD and NLD, they will basically ask more than you can say 4 or 5 years of experience who are having.
सो उन्हीं से ये क्वेश्चंस दे विल आस्क द सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चंस बेसिकली. तो यही मेरा एडवाइस रहेगा. अगर कोई मोर देन 4-5 years है देन दे कैन move on to the system designs questions also. Okay. So any particular questions you can recall that has been asked frequently in your interviews? हाँ, तो बेसिकली जो मैं जैसा कि मैंने बताया कि कुछ पैटर्न्स जो कॉमन थे इन एवरी इंटरव्यू. सो विथ कोर एंड एडवांस कंसेप्ट दे विल ऑलवेज आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू ऊप्स. दे विल ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू जावा 8 फीचर्स. सो अगर ऊप्स का मैं बोल दूँ तो दे विल आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड देन पॉलीमॉर्फिज्म, यू नो, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग. ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये पूछेंगे ही पूछेंगे. ये किसी ना किसी इंटरव्यू में आपको फेस करना ही पड़ेगा. उसके बाद जो जावा 8 के फीचर्स हैं जैसे कि यू कैन से फंक्शंस, यू नो, फंक्शन मेथड इम्प्लीमेंटेशन जितने भी हैं, लैम्डा इंटरफेसेस हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, है ना. तो ये जितने भी जावा के कॉन्सेप्ट रिलेटेड हैं ये आपसे पूछे जाएंगे. देन फ्रेमवर्क रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि स्प्रिंग का एमवीसी कंट्रोलर जो होता है, एमवीसी पैटर्न जो होता है, उस पर वो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे. एंड इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस इन माइक्रो सर्विसेज देन दे विल आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द माइक्रो सर्विसेज पैटर्न्स. सो ये मतलब कॉमन क्वेश्चंस जो आपको प्रिपेयर करने ही चाहिए. उसके बाद इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स विथ रेस्पेक्ट टू जावा दे विल आस्क कलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस मोर. सो जैसे कि कोई एरे लिस्ट का क्वेश्चन हो गया या फिर कोई हैश मैप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैश मैप, और सेट्स के क्वेश्चन हो गए. तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करें तो दिस वुड बी बेटर. Then you can move on to the other data structures question like stacks, queues, linked list and graphs and all. So like that you can pretty much divide the questions. हाँ, so अगर कोई बेसिकली 3-4 years ऑफ एक्सपीरियंस है, माइक्रो सर्विसेज के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आप माइक्रो सर्विसेज पैटर्न्स जितने भी हैं, यूरेका सर्वर वगैरह और एपीआई गेटवे, वो आप प्रिपेयर करिए. एंड डेटाबेसेस ऑफ कोर्स इज़ अ मस्ट. एनी वन डेटाबेस यू कैन प्रिपेयर वेदर एसक्यूएल और नो एसक्यूएल. एंड देन आई वुड say yeah, if you have experience in messaging queue or message brokers like Apache Kafka or RabbitMQ then prepare some questions as well there, but उसकी chances कम ही है. but if आप resume में mention करेंगे then yeah, interviewer will specifically ask, otherwise there is no need. Okay. So do you have any cloud experience or it had helped you in your interviews? Yeah, of course. So I have experience in Azure cloud basically. So in my Bosch, all my projects were deployed in Azure portal only, and I have the experience of migrating some legacy application from on-premise to Azure portal. So in that way I have some cloud experience, you can say. I have done certification also in Azure, so that helped me. And so इंटरव्यूअर्स का बेसिकली फोकस ये रहता है कि कैंडिडेट को रियल प्रोडक्शन बेस एक्सपीरियंस है कि नहीं, प्रोडक्शन बेस एप्लीकेशन हैंडल करने का, उसमें उसको डिप्लॉय करना आता है या नहीं, ट्रैफिक मैनेज करना आता है या नहीं, तो वो इंटरव्यू देखना चाहता है. सो इवन इफ़ यू हैव जस्ट अ डिप्लॉयमेंट एक्सपीरियंस ऑल्सो ऑन ए क्लाउड, दैट विल ऑल्सो बी एनफ. You don't need to go deep like how to configure the whole application to deploy, because in every company there would be a separate DevOps team to take care of all this. But as a developer आपको deploy करना आना चाहिए, उसका pods manage करना आना चाहिए. Pods is basically nothing, just managing the traffic and the go live of the application. So that's pretty much, if you
you can say learn from the resources, then that will be helpful. So, what were your responsibilities in Bosch as a Java developer? On which project you have worked on, and how it helped you in acing your interviews? So basically in Bosch, since Bosch is a automotive background company, so उनका जो प्रोजेक्ट्स थे वो सारे ऑटोमोबाइल बेस्ड ही थे. सो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो यू कैन से जो जो उनके पार्ट्स होते हैं उनका सर्वर मेंटेन करने के लिए था. तो उसमें जो भी मेरे जितने भी मतलब जो भी क्लाइंट्स थे सारे इंटरनेशनल थे, जर्मनी से ही थे. सो तो जो भी मतलब उनके जो प्रोजेक्ट्स थे आई वुड से उन लोगों ने प्रिटी मच डिवाइड कर रखा था कि एक सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है, एक हार्डवेयर डिपार्टमेंट है. सो हार्डवेयर का एक सेपरेट टीम होती है, वो लोग you know they need to be in office, they need to work on hardware devices and configure them, वो अलग चीज़ है. लेकिन एज पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इनका अलग टीम था और सो द प्रोजेक्ट्स वर रिलेटेड टू. सो बेसिकली कोई ओवरलैप नहीं था कि आई नीड टू बी working with the hardware team. We are handling separately as per the client request. So, how much jump you got from your previous package in the company that you have joined? So basically, I would say more than 100% I got in my current switch. So this also requires a bit of luck, I would say, and how to handle the different offers and negotiate with them. So like that you can handle. So basically in my switch experience I secured 5 offers, and based on the negotiated I went on to this jump, I would say. Yeah. So Ayush, मैं कुछ questions पूछने वाली हूँ, and apart from this interview, so I want you to tell me answers of those questions. So if you have to describe Java in one word, so what would it be? Okay, so I would say robust, secure, Okay. and reliable. Next question is, so what is your favorite Java framework and why? So favorite Java framework I would say Spring only, क्योंकि most of the time मैंने इसी में काम किया है. So moving on to the next question. So any one book or course that every Java developer should read or study? One book, I would say जावा की बुक मुझे याद तो नहीं है. बुक तो अब तो बुक आपने पढ़ी नहीं है, so you can tell me any course. Okay, so course I would say basically you can check out the Java Guides Udemy course and in 28 minutes course which is in Udemy. So coming to my next question, if not Java, so which programming language would you choose? If I know, not Java, yeah, I know it's then been which tricky for programming you, but yes, you have to choose. Like, if not Java, then what would you choose? Okay, so basically looking in today's market, I would choose Python or a language which is supporting today's AI world like data science and data analytics. और उसमें और भी लैंग्वेजेस हैं लाइक R एंड Scala. सो अगर इस तरह का कोई लैंग्वेज है जो मतलब अगर कोई यू वांट इफ़ समवन वांट्स टू आस्क आई वांट टू स्विच माय डोमेन फ्रॉम जावा टू अनदर डोमेन, सो आई वुड से लाइक जो डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स का जो डोमेन है ये भी प्रिटी मच गुड स्कोप में है. और जो डेटा इंजीनियरिंग है, सो अगर आप पाइथन प्रिपेयर करते हो या स्काला प्रिपेयर करते हो तो दैट वुड ऑल्सो हेल्प यू इन द लॉन्ग रन और आपको जॉब्स इजीली मिल सकते हैं. बट या यू विल need a certain level of expertise, then only these companies will entertain you after if you are switching your domain. And my next question is your dream company to work for. Dream company to Yeah, work you for. want to work for So which? What is your dream company? That's in your mind. Yeah, yes, I have to target this company
even though not now, but in later in future. Yeah. Okay, so I would say for every software developer, Google and Microsoft are dream company. Agree, agree. But I would also say Amazon also being in my list, and I have like tried 2 times Amazon. Pretty much went like was little bit close also to clear those, but in the end things didn't went through. But yeah, those are my, you can say, You dream can share company. your journey, like what happened, like why you haven't made through. Uh, Basically, it's nothing. You can say I was maybe a little short in my preparation with respect to the complexity which they were going for. In the, you know, like I said, in my notice period time, I targeted phase by phase, and in the end only I got to experience these companies. और जो और उनके कई लेवल ऑफ राउंड्स होते हैं जो बाकी कंपनीज में नहीं है, सो दे विल मूव ऑन टू इवन 4 और 5 राउंड्स, जो मैक्सिमम अदर कंपनीज में थर्ड राउंड तक ही होता है. सो जैसे जैसे लेवल लाइक राउंड्स बढ़ते हैं उनके लेवल बढ़ते जाते हैं. एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फुल्ली, यू कैन से, विथ डीपी क्वेश्चंस एंड ग्राफ क्वेश्चंस. सो वहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत हुई in clearing those rounds, the later rounds. So इस वजह से I was, you can say, left a bit short in that. I also feel that it's being very saddened part of the interview, reaching to the third stage, that is the last stage of interviews in some companies, and getting rejected from that particular round itself, like you're just back to zero. मीन्स इतनी होप जुड़ जाती है यार, बस लास्ट राउंड है, निकल जाए, ऑफर आ गया, एंड सडनली यू केम टू नो यार थर्ड राउंड में रह गए, एंड नाउ यू हैव टू स्टार्ट अगेन गिविंग योर इंटरव्यूज इन अदर कंपनी एंड स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. Like you landed in a third round in other companies and you were so much close to the offer letter, but now you have to start again. But yeah, this is a part of the interviews. No one can help या it. पर मैं ये बोलूँगा कि अगर आप रिजेक्ट भी होते हो किसी इंटरव्यू से, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज वो आपको प्रिपेयर करता है कि आप नेक्स्ट इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म करो, नंबर 1. दूसरी बात, आपको लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पता चलती है कि हाउ यू नीड टू मैनेज अदर कंपनीज राउंड इन दोज सिनेरियोज. सो आई वुड से दिस इज़ अ गुड experience gaining thing only. Okay, yeah. So Ayush, I'm almost done with my questions. So I don't have more questions to ask. So video already stretch up हो गई है काफी ज़्यादा. And now actually I believe सारे questions cover up हो गए होंगे, and if some of the questions have not been covered up और हमारे viewers को लगता है that I have to ask that particular question and I have missed that, आप मुझे comment section में message कर सकते हैं so that I'll cover up those questions in some another videos. And I would be providing Ayush LinkedIn ID. And Ayush, अगर आपके पास आपका resume available है तो please आप share कर देना, ताकि जितने भी viewers हैं उनको भी help हो जाए आपके resume से, और any resources that you have followed and crack those interviews. And I believe ये जो communication हुआ है regarding Java and everything, it has been very helpful to all the viewers who had been watching this video, and it's been so wonderful that you came to my channel and have shared such a wonderful info with our audience. Yeah, so it was a nice experience for me also interacting with you, Kajal. Thanks for inviting me again. And yeah, if anyone wants to connect to me, they can reach out to me. I would be glad to help someone. And yeah, thanks. Yeah, thank you so much, Ayush, for connecting. Thanks a lot. Thank you, everyone.